आज टीनेजर से लेकर के एक 80 साल का बूढ़ा भी जो है वो क्राइम में क्या हुआ देखना चाहता है। पता नहीं, मैंने बाय एंड लार्ज तो देखा है कि मुंबई की क्राइम रिपोर्टर्स काफ़ी बुज़दिल होते हैं। न्यूज़ मीडिया जो प्रिंट मीडिया है, दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद टेलीविजन। एक सुसाइड मरावाल हिल में होगा तो उसको ज़्यादा देखा जाएगा, और एक सुसाइड धारावी में होगा तो कोई इसको बॉदर भी नहीं करेगा। वो आपके वार्ता पत्र का एक छोटा सा पैराग्राफ बन के खत्म हो जाएगा। एक स्टार का किसी को एक रेस्टोरेंट में थप्पड़ मारना, अगर वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए और वो पूरा दिन चले, I think that's something that's unimaginable. In 80s, माफिया और अंडरवर्ल्ड डॉन्स वर लुक्ड एट एज रॉबिन हुड। दाऊद का कैरेक्टर भी जो है वो भी बहुत गलत हुआ है, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट दाऊद जिस तरह पोर्ट्रे किया गया है वैसे एक्चुअल इन रियल लाइफ दाऊद वैसा नहीं था। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा था कि वो जानते हैं कि मेरा बच्चा है जो स्कूल जाता है, तो मैंने उनको ये बताया कि कौन से स्कूल में जाता है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है। Bollywood is always a bit far from what reality is, क्योंकि हमारे ऑडियंस को एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस चाहिए हॉल में। अगर उनको रियलिज्म चाहिए तो वो न्यूज़ चैनल पे देख लेते हैं, पेपरों में पढ़ लेते हैं। आप ऑडियंस इज प्रेडोमिनेटली एन एस्केपिस्ट ऑडियंस, तो ब्लेंड है। इट्स वी ट्राई टू कीप मोस्ट ऑफ द थिंग्स ट्रू टू लाइफ जिस तरह जर्नलिस्ट होते हैं, बट या देयर हैज़ टू बी दैट जो तड़का होता है, जो मसाला होता है बॉलीवुड फिल्मों में, to add that zing to the story, to the narrative, to the thrill. देखिए सोफे पर कॉफी और पॉपकॉर्न के साथ चटपटी सेक्सी ब्रेकिंग न्यूज, जब तक आप खुद एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। आप सवाल पूछना चाहेंगे कुछ? Okay, no questions. Okay, see you. Bye bye. See, in 80s, mafia or underworld dons were looked at as Robin Hoods. I mean, Haji Mastan was looked at as the new avatar of Hatim Tai. I mean, if you guys are aware of this historical character. Or Kareem Lala was considered to be a big savior of poor and downtrodden. Dawood Ibrahim himself was considered to be a big hero type of people. So, over a period of time, if you see that it was because of this image that they made Diwar based on Haji Mastan, and they had Zanjeer on Kareem Lala. They also had Naikan and Dayawan on Vardarajan. It's because they had very positive image of a guy who has been supposedly maligned by the media, portraying him as a underworld don or a criminal or whatever. So these movies were made to make those amends in those portrayal which was made by the media. But by late 80s and early 90s, pictures started becoming clear that these guys are really not Robin Hoods or do-gooders as they present themselves. There is really more to it. See, once upon a time in Mumbai के अंदर भी हाजी मस्तान को एक मसीहा बताया गया है, और if it was about him, because they normally said it's not about Haji Mastan and Dawood. अलबत्ता दाऊद का कैरेक्टर भी जो है वो भी बहुत गलत हुआ है, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट दाऊद जिस तरह पोर्ट्रे किया गया है वैसे एक्चुअल इन रियल लाइफ दाऊद वैसा नहीं था। सो रियलिटी जो है काफ़ी दूर है उससे। Which Hindi film, which Bollywood film is the closest to these characters? Why do you want to put me in trouble? No, anything close. Okay, which is your favorite underworld Bollywood film? And why? Why would you say that? I would say none. None. I mean, because they don't come close to authentic portrayal of the mafia dons. Okay. At least Hollywood, I mean, I would say that they have been very close, like The Untouchables or those kind of movies. But in Bollywood, I don't know. Either there is some fear, or there is lack of information, or something goes wrong, and where they can't portray them in the right manner. For example, when I look at one time in Mumbai, the Haji Mastan's character, I keep looking at it why he has been shown in that manner. मुझे कुछ एक धमकी आई थी मेरे करियर में, बट मैंने उसकी परवाह नहीं की। और मतलब कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा था कि वो जानते हैं कि मेरा बच्चा है जो स्कूल जाता है, तो मैंने उनको ये बताया कि कौन से स्कूल में जाता है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो इसकी मुझे धमकी आ चुकी। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करी जब मैं ब्लैक फ्राइडे लिख रहा था, कहा था तुम कौम के गद्दार हो, क्यों गद्दारी कर रहे हो। सो लाइक इस किस्म की धमकी आ चुकी हैं, बट इट्स ओके। पता नहीं, मैंने बाय एंड लार्ज तो देखा है कि मुंबई की क्राइम रिपोर्टर्स काफ़ी बुज़दिल होते हैं। सो आई मीन मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दे शुड बी। अदरवाइज इतनी सारी चीज़ें होती रहती मुंबई के अंदर, मुंबई पुलिस के बारे में, माफिया के बारे में, दे डोंट गो अहेड एंड राइट एंड एक्सपोज दोज थिंग्स। और जहाँ तक डलनेस की सवाल है, तो मीन इट्स बीन सिंस लॉन्ग टाइम, पिछले 2-3 सालों से स्टैंडर्ड काफ़ी गिरता ही चला जा रहा है। बिकॉज व्हाट हैज़ हैपेंड इसके न्यूज़ मीडिया जो प्रिंट मीडिया है, दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद टेलीविजन। They are not understanding the fact that they are print and they will remain print. They should not compete with a totally different medium. But उनको उनसे compete करने के चक्कर में इनकी स्टोरी का स्टैंड खराब होता जा रहा है। Crime is a universally interested thing. People want to read crime. They want to see crime stories. They are very interested.
आई मीन आज टीनेजर से लेकर के एक 80 साल का बूढ़ा भी जो है वो क्राइम में क्या हुआ देखना चाहता है। आई मीन यू नो दैट आज टेलीविजन में जो क्राइम बेस्ड शोज हैं दे आर फार मोर सक्सेसफुल दैन दोज सास बहू थिंग्स। 93 ब्लास्ट के अंदर अगर कोई एक्टर का इन्वॉल्वमेंट है तो वो चीज़ एक बहुत मेजर चीज़ है। सैफ ने किसी को थप्पड़ मारा, वो एक बहुत सिविल मैटर है जो उस वक्त के क्या हालात थे, क्या वजह थी, उनको पूरे दिन उस चीज़ को चलाना है। लेकिन उस ज़माने में वो इस तरह के न्यूज़ को लोग हाईलाइट नहीं करते थे। ऐसे कि अगर कोई स्टार का किसी अंडरवर्ल्ड के डॉन से संबंध है तो उस पर स्टोरीज होती थी, या अगर 93 ब्लास्ट में कोई इसका हाथ आ गया है, कुछ हो गया, तो वो बातें होती थी। ये एक थप्पड़ मार देना या किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाना, वो सब न्यूज़ बनता ही नहीं था, छोटा सा आइटम होकर डिस्कस हो जाता था। अगर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाना है तो एक स्टार का किसी को एक रेस्टोरेंट में थप्पड़ मारना, अगर वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए और वो पूरा दिन चले, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट्स अनइमेजिनेबल। आई थिंक बाहर देयर मोर रेलिवेंट स्टोरीज फॉर anything else but not this. I mean, अगर आपको दिखाना है एक छोटा स्निपेट दिखा दो, but how can you keep playing it on loop the entire day? That's just no brainer. There's nothing there. But then again people are watching it. आमतौर से जो अपर लेवल के लोग होते हैं या जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, पुलिस और मीडिया उन पर ज़्यादा ध्यान देती है, और लो लेवल पे ना पुलिस ज़्यादा ध्यान देती है ना कोई और। फॉर एग्जांपल एक सुसाइड मुराबाद हिल में होगा तो उसको ज़्यादा देखा जाएगा, और एक सुसाइड धारावी में होगा तो कोई इसको बॉदर भी नहीं करेगा। वो आपके वार्तापत्र का एक छोटा सा पैराग्राफ बन के खत्म हो जाएगा।